नमस्कार, क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। वी विल टॉक इन डेप्थ अबाउट दिस चैप्टर पॉलिनोमियल एंड वी विल डू many questions which have come in board examinations. Let us see. Polynomial is an expression of this form, like a naught x to the power n plus a1 x to the power n minus 1, a2 x to the power n minus 2 and so on. Last term can be an x to the power what? You can see the pattern n minus 2, so it will be n minus n, that is x to the power 0. Fine. Here a0, a1, a2 till the last term, these all are called coefficients. Okay, and generally these coefficients are real numbers. Okay, they can be any real number, कोई भी real number हो सकते हैं. ठीक है, they can be natural number, whole number, rational number, irrational number. Okay, but real होंगे. ध्यान रखिएगा, they will never be complex. यानी ऐसे कोई भी नंबर नहीं होंगे जो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज हैं. ठीक है, ऐसे नंबर्स नहीं होंगे. ठीक है, ये जितने भी कोएफिशिएंट हैं वो केवल और केवल रियल होंगे. और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, जो पावर्स है n की, n यानी x की जो पावर्स हैं, ये क्या होगा? दिस इज प्योरली व्हाट? होल नंबर्स. ओके, दिस विल नेवर बी नेगेटिव वैल्यू. ऐसी कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, केवल और केवल होल नंबर होगी. जीरो हो सकता है, जीरो से बड़ी होल नंबर में कोई वैल्यूज हो सकती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, बट कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, कभी फ्रैक्शन नहीं होगा. ठीक है, तो ये कुछ खास चीजें हैं. आप पॉलिनोमियल px से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, gx, hx, rx, एनीथिंग. फाइन. सो दीज आर जस्ट नोटेशन एंड दिस सॉर्ट ऑफ एक्सप्रेशन आर कॉल्ड पॉलिनोमियल. Let us see some examples. Px is equal to, suppose I say 7. Okay, sir आप कहेंगे सर इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं. Okay, how can it be a polynomial? Yes, it is. Here we say the power is, variable power is 0. यहाँ पर देखिएगा 2x plus 3. Okay, next we can say gx, or it can be anything, rx also, anything we can say. Now what is gx here? This is 4x square plus 3x plus 2. Okay, if we say hx is equal to 4x cube minus 5x plus 13, anything. So what is important here? Main thing is powers. Powers of the variable. Okay, they will be whole numbers. क्या होंगे? whole numbers होंगे. And these constant terms, they will be real numbers. ये important चीज है. Fine. अब यहाँ पर एक और important बात आती है, डिग्री. What is degree of polynomial? Polynomial की डिग्री क्या है? ठीक है, सो डिग्री से हमारा सेंस क्या है? जो वेरिएबल यूज हो रहा है, इट कैन बी x, इट कैन बी y, इट कैन बी एनीथिंग. राइट, तो जो भी वेरिएबल है, सपोज x है या y, इसकी जो मैक्सिमम पावर है, दैट इज कॉल्ड डिग्री. ठीक है, सो डिग्री मींस दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम और हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x. ओके, जो भी वेरिएबल क्वेश्चन में यूज हुआ है, उस वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है, दैट इज कॉल्ड डिग्री. सो फॉर दिस, डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच? डिग्री इज इक्वल टू n. You can see the maximum power. Fine. Here, what is the degree? Degree is equal to how much? 0. Okay. And here, what is degree? X की maximum power कितना है? 1. So here degree is equal to 1. For this, we can say degree is equal to how much? 2. Okay, and for this degree is equal to 3. तो आप देख सकते हैं कि how we find the degree. ठीक है, these are examples of polynomials and degree means the maximum power of the variable. Clear? Now similarly, if at the place of x, if we use y variable, so this can be y also, like 3y minus 7. Fine. It can be z also. Suppose we say gz is equal to 4z square minus 3. So these can also be possible. Fine. So it is not necessary that every time variable x will come. It can be variable y also, z also, or any other variable can also be used. Now we discuss about types of polynomials. So very first thing is that constant polynomial. Constant polynomial. It means whenever degree
of a polynomial is 0. Okay, it is called constant polynomial. Fine. You can see example px is equal to, we just gave example 7. Fine. So what happens here? The variable term is not there, or we can say the power of the variable used is 0. So we can also write this thing as px is equal to 7x to the power 0. It means this value is nothing but 1. ठीक है ही नहीं वैल्यू, इसके प्लेस पर सिंपल लगा हुआ है 1. इट मींस क्या डिग्री हो यहाँ पर 0. तो ये कहलाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल. फाइन. देन वी डिस्कस अबाउट लीनियर पॉलिनोमियल. ये कौन से पॉलिनोमियल होते हैं? जिन पॉलिनोमियल की डिग्री कितना होता है? डिग्री इज इक्वल टू 1. ऐसे पॉलिनोमियल को हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल. ठीक है, एग्जांपल देख सकते हैं. सपोज आई से gx इज इक्वल टू 3x minus 4. ओके, 4y माइनस या प्लस 7. कैन बी एनीथिंग. ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं. ठीक है, आप किसी भी एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, hy, gx, व्हाटएवर, एनीथिंग. बट मेन चीज क्या है? द डिग्री मींस पावर ऑफ द वेरिएबल हैज टू बी 1. ठीक है, ये मेन कंडीशन है. क्लियर? सेकंड थिंग, ये कांस्टेंट है, दे शुड बी रियल कांस्टेंट ही होने चाहिए. राइट? बिकॉज आपकी क्लास 10 के सिलेबस में जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं या नॉन रियल वैल्यूज वो अलाउड नहीं है. ओके, सो दे विल बी ऑलवेज, दीज वैल्यूज विल बी रियल ओनली. नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. Okay, so what is quadratic? Simple बात है. When degree is equal to 2, then polynomial is called quadratic polynomial. Fine. Example, suppose I say hx is equal to 2x square plus 3x plus 4. Now, sometimes students get confused. They say, sir, क्या जरूरी है ये सारे टर्म होना? I say, no. The main thing is that this sort of term, this should be there. यानी मैक्सिमम पावर वाला जो टर्म है, डिग्री 2 वाला टर्म है, ये हमेशा होना चाहिए. जब हम बात कर रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल की, इट मींस ये टर्म मस्ट है, ये टर्म होना ही चाहिए यहां पर. ठीक है, और ये सबसे बड़ी पावर का टर्म होगा. बाकी टर्म इससे कैसे होंगे? छोटी पावर के होंगे. अगर ये नहीं भी होते हैं, इफ वी सिंपली से 3x, ओके, देन आल्सो इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल. यहां भी अगर सिंपली हम बात करें 2x स्क्वायर, देन आल्सो इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. फाइन. और एग्जांपल ले लीजिए, इफ वी से 2x स्क्वायर प्लस 4, this is also possible. It is also quadratic. If we say 2x square plus 3x, so this is also quadratic. Fine. So these all are quadratic polynomials. The main thing, the degree 2 term should be there. ठीक है, degree 2 वाला term होना चाहिए, ये 100% must है. Next is cubic polynomial. Here the simple thing, degree should be 3. Okay, so it means the expression should be of the form px is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d. Here a, b, c, d are all real values, coefficients. Okay, they can be anything. And this main term should be there. It means degree 3 वाला term है, ये must है, ये होना ही चाहिए. Fine. If we simply say x cube plus 1, so this is also a polynomial. Okay, of degree 3. So all degree 3 polynomials are called cubic polynomial. Fine. Next is biquadratic. Biquadratic means the degree should be 4. Okay, if any polynomial is there whose degree is 4, that is called biquadratic. We can see example, ax to the power 4 plus bx cube plus cx square plus. Okay, so these are biquadratic polynomial. Okay, the main thing is that the degree should be 4. This term, degree 4 term should be there. The constant can be anything. It can be 4, 14, anything. Fine. But it should be non-zero. Term का coefficient है, highest power term का coefficient. This should be non-zero. Similarly, जब हमने degree की बात की थी, a0 x to the power n, तो ये a0 term है, this has to be non-zero. Okay, तभी हम कहेंगे कि इस expression की degree क्या है? n है. ठीक है? So this is important thing. तो यहां पर भी क्या होगा? ये टर्म हमेशा a नॉन जीरो होगा. दिस शुड बी नॉन जीरो, ये जीरो के इक्वल नहीं होगा.
तभी डिग्री 3 होगी। अगर ये 0 के इक्वल हो गया देन डिग्री विल बिकम 2 और लेस। ठीक है, if polynomial of degree more than 4 is required, okay, we simply say, we do not call by some specific name, we simply say that this is a polynomial of degree 5 or degree 6, okay, and so on। ठीक है, उनके लिए अलग से कोई नाम देने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली इस तरह से बोल सकते हैं कि it is a polynomial of degree 5, degree 6 and so on। What is meant by value of a polynomial? आइए हम देखते हैं। सपोज करिए एक polynomial हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ठीक है, हम बात करना चाह रहे हैं वैल्यू। ओके, वैल्यू से क्या सेंस है हमारा वो समझते हैं। सपोज मैं बात करता हूं x इक्वल टू 1, एक वैल्यू पुट करता हूं वेरिएबल की, फाइन, x इक्वल टू 1। देखिए क्या वैल्यू निकलती है। सो 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5। हाउ मच इज दिस? 3 प्लस 4 माइनस 5। हाउ मच? 7। 7 माइनस 5 इज 2। सो वी से px इक्वल टू 1 और we always say this value p1 also 2। okay, तो ये दो नोटेशन है। we can call this value as px is equal to 1 or p1 and its value is 2। okay, for this particular fashion। तो अगर ये एग्जांपल है, ये पॉलिनोमियल है, तो इस पॉलिनोमियल की x इक्वल टू 1 पर जो वैल्यू है वो होगी 2। ठीक है, इसी तरह से डिफरेंट पॉइंट्स पर हम वैल्यू निकाल सकते हैं। सपोज हम p0 फाइंड करें, यानी px इज इक्वल टू 0 पर इसकी क्या वैल्यू आती है, तो सिंपली से 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0 माइनस 5। सो दिस इज हाउ मच? दिस इज माइनस 5। दीज टू टर्म्स आर 0। ओके, तो देखा आपने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का क्या सेंस है। इट मींस एक्सप्रेशन में x इज इक्वल टू वो वैल्यू पुट कर दीजिए सिंपली। ठीक है, सिंप्लीफाई कीजिए एंड व्हाटएवर कम्स दैट विल बिकम द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। फाइन, आई होप इट इज क्लियर। अब हम यहां बात कर लेते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहां पर बात आती है जीरो मींस एक ऐसी वैल्यू जिसको रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। सपोज करिए कि हम कोई पॉलिनोमियल लेते हैं x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, तो x की सपोज वैल्यू अल्फा पुट किया, तो इस अल्फा को पुट करने पर अगर 0 आ जाए, यानी अगर p अल्फा 0 आ जाए, देन वी से अल्फा इज ए 0 ऑफ व्हाट? ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको समझते हैं। 0, कई बार ये जो वर्ड आता है 0, ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, बिकॉज वी नो मैथमेटिक्स में 0 इज दिस नंबर, इस नंबर को हम 0 कहते हैं, फाइन, इंग्लिश में 0 कहते हैं, बट यहां 0 का जो सेंस है वो एक डिफरेंट चीज से है। ठीक है, 0 का सेंस एक वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू से है, फाइन, इट कैन बी एनीथिंग। हम यहां पर केवल अल्फा से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सपोज x इक्वल टू अल्फा इज एनी वैल्यू, तो उस स्पेसिफिक वैल्यू के लिए अगर p ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0, p अल्फा अगर 0 आता है, देन वी से दिस अल्फा इज a 0 ऑफ px। व्हाट विल इट बी? इट विल बी a 0। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से एग्जांपल px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सपोज हम ये एग्जांपल लेते हैं और यहां पर हम p फाइंड करते हैं 2। व्हाट इज p2? ठीक है, x इक्वल टू 2 पर वैल्यू निकालते हैं। सो दिस इज हाउ मच? सिंपली 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। सो दैट इज 4 माइनस 10 प्लस 6। सो दिस इज 10 माइनस 10 इज 0। तो हमने क्या देखा? p2 इज इक्वल टू 0। आप ये भी कह सकते हैं px इज इक्वल टू 2। p2 और px is equal to 2 is actually 0। क्या सेंस हुआ? इट मींस x is equal to 2 रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। ओके, सो व्हाट वी से x is equal to 2 is a 0 of px। कौन से px के लिए? इस पर्टिकुलर px के लिए। इस px के लिए x is equal to क्या होगा? इट विल बी 0। फाइन, आई होप क्लियर हो चुका हो आपको। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और पूरे चैप्टर में अगर आपने ये क्लियर नहीं किया, देन यू कैन नॉट डू द क्वेश्चन, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द चैप्टर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द चैप्टर। 0। ओके, एक बार फिर से क्लियर कर लें। एक ऐसी वैल्यू वेरिएबल की
जिस वैल्यू को रखने पर पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाती है, बिकम्स 0। फाइन, उस वैल्यू को हम बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, यहां पर एग्जांपल लिया हमने, x इक्वल टू 2 पुट किया, 2 पुट करने पर 0 आ रहा है, इट मींस दिस इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर? सपोज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। ओके, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, देन नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ये भी 2 होंगे। तो जितना डिग्री होगी पॉलिनोमियल की, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अगर डिग्री 1 है तो नंबर ऑफ जीरोस भी 1 होंगे। तो अगर डिग्री इज इक्वल टू 2 है, नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। इफ डिग्री इज 1, देन नंबर ऑफ जीरोस आर आल्सो 1। ठीक है, सिमिलरली अगर डिग्री 3 है, देन नंबर ऑफ जीरोस विल बी 3। ठीक है, तो यहां पर देखिए डिग्री कितना है, 2, सो देयर विल बी 1 मोर जीरोस। आप डिफरेंट वैल्यू पुट करिए, आप चेक कीजिए, p इज इक्वल टू 3 पर चेक कीजिए, 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, दिस इज 9, 5 3 से 15 एंड प्लस 6, 9 and 6, this is 15 minus 15, it is 0. Therefore x is equal to 3, this value is another 0 of px। ये px का एक और 0 है। ठीक है, तो हमने देखा डिग्री 2 थी, that means x is equal to 2 and x is equal to 3, these are 2 zeros। ठीक है, तो जितनी डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे पॉलिनोमियल के। दे कैन बी सेम और दे कैन बी डिफरेंट, दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बट देयर विल बी सेम नंबर ऑफ जीरोस।